بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور الدین جنگی مسلم دنیا کے عظیم ترین فتح اور مثالی حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام الملک العادل نور الدین عبد القاسم محمد ابن عماد الدین جنگی تھا، اور آپ بہت ہی نیک اور عبادت گزار شخص تھے۔ نور الدین جنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کا انتقال 15 مئی 1174 کو 56 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کے والد کا نام امام الدین جنگی تھا، جو خود بھی ایک عجیب مسلم حکمران تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی اور چھوٹے بیٹے نور الدین جنگی کے درمیان سلطنت کا بٹوارا ہو گیا، لہذا نور الدین جنگی کے حصے میں حلب کی سلطنت، جبکہ سیف الدین غازی کو موصول کی حکمرانی دے دی گئی۔ ان دو سلطنت کے درمیان بارڈر بیر الخوبر نامی دریا تھا۔ نور الدین اپنی قائدل نصیحت اور جنگی حکمت عملیوں کے ذریعے حکمران بننے کے کچھ ہی عرصہ بعد آس پاس موجود عیسائی ریاستوں کے شکست دے کر ان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک شام اور ایران کے پاس موجود مسلمان ریاستوں کا اتحاد بھی قائم کیا، اور یوں صلیبی دشمنوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ 1147 عیسوی میں معین الدین، جو کہ دمشق کے گورنر تھے، ان کے ساتھ بھی اتحاد کے لیے موجودہ کیا گیا، جس کے مطابق نور الدین جنگی نے معین الدین کی بیٹی عصمت الدین خاتون سے شادی کی۔ آپ نے اپنے دور حیات میں بے شمار جنگیں آسمیوں سے لڑی اور پے در پے فتوحات کے ذریعے اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ دوستو، نور الدین جنگی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، یہاں تک کہ آپ نے الگ سے ایک منبر بنوا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ جب آپ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اس مسجد اقصی میں اپنے ہاتھوں سے خود نصب کریں گے، مگر آپ کے دور حیات میں ایسا ممکن نہ ہو سکا، لہذا آپ کی وفات کے بعد آپ کے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا اور آپ کا وہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نصب کیا۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ میں نے خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین جنگی سے بہتر سیرت مند اور عادل حکمران نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو آپ نے اپنی 3 دکانیں، جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی، ان کو خرچ کے لیے دے دی۔ جب آپ کی بیوی نے اسے کم سمجھا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کی امانت ہے، میں تو محض ان کا خزانچی ہوں، لہذا میں تمہارے خاطر امانت میں خیانت کر کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ دوستو، نور الدین جنگی عظیم انسان تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ قوم میں زیارت ہوئی، اور انہوں نے نور الدین جنگی کو 3 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے نور الدین جنگی کو ایک بہت اہم منصب سونپا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن نور الدین جنگی تہجد کی نماز پڑھ کر سو گئے اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سلطان خواب میں 2 اور چہرے بھی دکھائی دیے، جو کہ 2 عمر رسیدہ افراد تھے جنہوں نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر داڑھی بھی تھی، مگر ان کی شکلیں پر نور ہونے کے بجائے مکروہ دکھائی دے رہی تھی۔ اسی دوران سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بوڑھوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔
यूं यह ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत पर ख़त्म हो गया और सुल्तान की अचानक आँख खुल गई। लिहाजा उन्होंने वज़ू करके 2 रकात नमाज अदा किए। यूं नमाज अदा करके वह दोबारा सोने के लिए बिस्तर पर चले गए और जैसे ही उन पर दोबारा नींद का गलबा हुआ, दोबारा से इन्हें वही ख्वाब दिखाई दिया। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और 2 मकरूह चेहरे दोबारा दिखाई दिए, जिनके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनके शर से हमारी हिफाजत का इंतज़ाम करो। सुल्तान बेचैनी में दोबारा बेदार हो गए और ख्वाब का मंजर इनकी आंखों के सामने गर्दिश करने लगा। आपने दोबारा वज़ू करके नवाफिल अदा किए और तीसरी मर्तबा सोने के लिए लेटे। इस बार भी आपको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बार ज़ियारत नसीब हुई और वही ख्वाब दोबारा नज़र आया। सुल्तान अचानक बेदार हो गए और शदीद उलझन और बेचैनी में मुब्तला हो गए और अपनी नम आँखों से बोले कि मेरे होते हुए मेरे आका मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन परेशान कर रहा है। जब सुल्तान को कुछ समझ ना आया तो उन्होंने अपने मुशीर ख़ास जमालुद्दीन असुसुहानी को तलब फरमाया और इनसे अपना तमाम ख्वाब बयान किया। उन्होंने तमाम ख्वाब सुनने के बाद फरमाया कि लगता है कि मदीना में कोई अहम वाक़या पेश आने वाला है, लिहाजा आपको अपना ख्वाब पोशीदा रखना चाहिए और फ़ौरन मदीने के लिए रवाना हो जाना चाहिए। लिहाजा सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने सुबह का सूरज तुलू होने से कब्ल जमालुद्दीन के साथ फजर की नमाज अदा की और 20 मजीद अफराद के हमरा मदीना के लिए रवाना हो गए। ये तमाम अफराद तेज़ तरीन घोड़ों पर सवार थे। दोस्तों, दमिश्क और मदीना का फासला निहायत तवील था, जो कि तकरीबन 20 से 25 दिन बनता था, मगर सुल्तान ने बिना रुके दिन रात तेज़ रफ्तारी से सफ़र करके इसे महज 16 दिन में तय किया। इस दौरान आपकी नज़रों से खौफ के मनाजिर एक लम्हे के लिए भी ओझल ना हुए। मदीना पहुंचकर हाकिम मदीना ने सुल्तान का इस्तकबाल किया। सुल्तान ने अपने आने का मकसद इनसे बयान किया। जवाब में हाकिम मदीना ने यकीन दिलवाया कि अगर वह 2 बूढ़े यहाँ मौजूद हुए तो हम उन्हें ज़रूर ढूंढ लेंगे। लिहाजा हाकिम मदीना के मशवरे पर मदीना भर के लोगों के लिए एक बड़ी दावत का इंतज़ाम किया गया, जिसमें मदीना के हर ख़ास और आम शख्स को दावत दी गई। जब मदीना के तमाम लोग दावत पर पहुँचे तो सुल्तान ने हर शहरी को दावत के बाद हदिया दिया और गौर से देखा, मगर इनमें से कोई भी वह 2 बूढ़े नहीं थे जो ख्वाब में दिखाई दिए थे। लिहाजा सुल्तान ने अमीर मदीना से दरियाफ्त किया कि क्या कोई शख्स बाकी तो नहीं रह गया। उन्होंने जवाब दिया कि इस दावत में सिर्फ 2 दरवेश हाजिर नहीं हुए और वह बहुत ही नेक और दौलतमंद बुजुर्ग हैं। वह हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं और लोगों से ज़्यादा मेल जोल भी पसंद नहीं करते। सुल्तान ने शक होने पर इन दोनों बूढ़ों को तलब करने का हुक्म दिया। जब वह सामने आए तो सुल्तान ये देखकर हैरान हो गए कि ये दोनों वही थे जिनकी जानिब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इशारा करके फरमाया था कि इनके शर से हमारी हिफाजत करो। सुल्तान ने इनसे दरियाफ्त किया कि तुम कहाँ से आए हो। उन्होंने कहा कि हम दायरे मगरिब से हज करने के लिए आए थे और फिर यहीं आकर आबाद हो गए। सुल्तान इन दोनों बूढ़ों को साथ लेकर इनकी रिहाइश गाह पहुँचे और जायज़ा लिया। वहाँ कुरान मजीद के चंद नुस्खे, कुछ नसीहत की किताबें और थोड़ा सा घर का सामान और एक चटाई मौजूद थी। सुल्तान ने जब चटाई उठाई तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ एक सुरंग खुदी हुई है और यह रोज़े रसूल तक जा रही थी।
लिहाजा इन दोनों बूढ़ों को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने बताया कि ये ईसाइयों के भेजे हुए जासूस हैं जिन्हें रोज़े रसूल तक सुरंग खोद कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराने के लिए भेजा गया था। इस मकसद के लिए वह रात भर सुरंग खोदते थे और मिट्टी चमड़े के थैले में डालकर कब्रिस्तान फेंक आते थे और इसीलिए उन्होंने रोज़े रसूल के करीब रिहाइश इख्तियार की थी। यहाँ तक कि वह सुरंग खोदते खोदते हज़रत उमर फ़ारूक की कब्र मुबारक तक पहुँच चुके थे। सुल्तान ने वहीं मौके पर इन दोनों बूढ़ों का सर कलम कर दिया, जबकि इस वाक़े के बाद सुल्तान जारकुतार रोते और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे कि अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में रोज़े रसूल अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए इन्हें मुंतखब किया, जबकि वह इस काबिल ना थे। सुल्तान ने रोज़े रसूल के गिर्द गहरी खंदक खुदवाई, इसमें पिघला हुआ शीशा भर दिया ताकि दोबारा कोई भी ऐसी गुस्ताखी ना कर सके। बाद में इस खंदक पर एक जंगला भी लगा दिया गया ताकि ज़ायरीन इससे आगे ना जा सके। 816 हिजरी में मिस्र के बादशाह रुकनुद्दीन ने खंदक पर 21 फुट ऊंचा लोहे का जालीदार अहाता भी नस्ब करवा दिया। दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी एक ईमानदार, कनातदार और नेक शख्स थे। वो बहुत ज़्यादा सदका खैरात किया करते थे। आपने अपने दौर हुकूमत में बहुत सी मस्जिदें और मदरसे भी तामीर करवाएं, जिनमें ख़ास तौर पर कुरान और अहादीस की तालीम दी जाती थी। आप ख़ुद भी हदीस के हाफिज़ थे और इन्हें बहुत सी खूबसूरत अंदाज में बयान किया करते थे। आपने गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल भी कायम किए, जबकि हज पर जाने वाले मुसाफिरों और हाजियों के लिए आरामगाह भी तामीर करवाई। आप हफ्ते में एक बार अवामी अदालत भी मुनकिर करते थे, जिसमें आप अपने गवर्नरों, जर्नलों और तमाम दीगर मुजरिमों के ख़िलाफ़ भी अगर कोई भी शिकायत होती तो इनको सुनकर इनका सद्भाव करते। सुल्तान नूरुद्दीन एक निहायत ज़हीन और ज़रूरतमंद शख्स थे। आपने जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और यही बात सैयद को पसंद नहीं थी। लिहाजा उन्होंने हसन बिन सबा के फिदियानी को नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शहीद करने के लिए भेजा, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन भी इस हमले में बच गए। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को हसन बिन सबा के फिदायिनों ने जहर देकर शहीद कर डाला। ये इस्लामी तरीका अजीम मर्द मुजाहिद अपने खलीफा हकीकी से जा मिला। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे लिखते जाएं। अस्सलाम वालेकुम।